Hello, Taurus people. How are you doing? Welcome to my reading. It's a reading about your manifestation. It's a general reading, certainly, which will denote manifestation, positive affirmation, and two guidances from the universe, from the angels, Archangel Michael, and other angelic part. So basically, universal guidance. Okay, so it's a general reading. You can take it or apply it in any field of your life, be it your personal life, be it your professional life, be it your family life, be it for your own self, be it life in general. कुछ भी फील्ड में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जो आपके लिए रेजोनेट होगा. दैट इज़ द बॉटम लाइन. ओके टॉरस पीपल, टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू. हो सकता है किसी टॉरियन के लिए ये मैनिफेस्टेशन, ये पॉजिटिव अफर्मेशन, ये गाइडेंस लव लाइफ में फिट कर रहा है. किसी टॉरियंस के लिए हो सकता है वो प्रोफेशनल लाइफ में फिट कर रहा है. सो जस्ट टेक द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स. ओके, सो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया. सो प्लीज़ डू द नीडफुल एंड टेक इट एज इट resonates with you. Okay, so it's a manifestation reading, positive affirmation reading, and couple of guidances from the universe. Okay, I'll shuffle and place all the cards first, then I'll start the reading for you. This is a positive affirmation deck. Let's see आपके लाइफ में क्या चल रहा है या फिर क्या करना उचित होगा आपके लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स गाइड्स यू. ओके, this is now the guidance part from the angels. I'll be using two guidance deck to further enhance your reading, Taurus people. जैसा मैंने कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, you can apply these energies or use these energies or take it as a guidance in any area that fits into your life, be it a professional field, professional area, be it a personal area, be it a love life, be it a family life, be it your life in general or for your own self, whatever area it is, just take it as it resonates with you. Okay, Taurus people. Okay, now the last part is the angelic guidance from the Archangel Michael. Please pay heed to the guidance. ये guidance आपको जो दिया जा रहा है from the universe as it is presented to me, I am presenting it in front of you. Okay, so please इसे pay heed करें, इसे गौर फरमाएं, ध्यान दें और अपनी लाइफ में सुधार लाएं. ओके, ये आपके भलाई के लिए ही है. ओके, universe, please guide the Taurus people. Let them know what they need to know. Please let them know what they need to know in their life in general and guide them. Okay, so I'm done with shuffling and placing the cards. Moving on to the reading part, Taurus people. Okay, the manifestation card. This is the manifestation card. Okay, it says your natural state is joy. मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोग थॉट से, अपने ख्यालात से, इमेजिनेशन से रियलिटी में लाते हैं, वास्तव में लाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, उसे हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं. मेरे यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. टेक इट इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस
एंड अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो रूल्स या फिर जो मैंने डिस्कस किया है उस वीडियोस में। तो इंसान को कभी कभी पता नहीं होता कि अपने थॉट्स को रियलिटी में कैसे लाए। चाहते तो हैं थॉट्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे ये तरीका पता नहीं है बहुत जने को। तो इस तरीके को पता करने के लिए, जानने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। उनमें बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू मेक अ पॉजिटिव एफर्मेशन इन योर लाइफ एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ in whatever field you need. Okay, so starting with the manifestation card, it says, Taurus people, your natural state is joy. Your natural state is joy. I'll describe it further. When you're miserable, don't you feel as though every bit of energy has been sucked out of you? It takes so much energy to think negatively and to feel miserable. To return to joy is so simple. All it takes is one positive thought and then the other and then the other. Like a practice, like a habit. So हो सकता है आपके लाइफ में कुछ मिजरेबल सिचुएशंस चल रहा होगा किसी टॉरेंस के साथ, चाहे कोई भी फील्ड हो आपकी लाइफ में, लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सेल्फ के प्रति हो सकता है। सिंस दिस कार्ड हैज़ कम आउट फॉर यू टॉरस पीपल, सो इट इज़ हाईली पॉसिबल शायद आप कुछ मिजरेबल स्टेट से, सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, जिसके लिए आप परेशान हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है। उस नेगेटिव थिंकिंग से कैसे आप बाहर निकल सकते हैं? बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग इट सक्स आउट द एनर्जी। जो जोश, जुनून रहता है, खुशी रहती है, वो पूरा सक आउट कर लेता है। नेगेटिव एनर्जी ऐसी एक चीज़ है दैट यू फील दैट एवरी बिट ऑफ एनर्जी हैज़ बिन सक्ड आउट ऑफ यू। हम लोग बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं मेंटली, फिजिकली, अगर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाए तो। यू मस्ट बी नोइंग यू गाइज, इट फील्स दैट वे। सर्टनली आप लोगों के साथ भी होता है शायद। सो क्या करना चाहिए? इट टेक्स सो मच एनर्जी टू थिंक नेगेटिवली एंड टू फील मिजरेबल, बट टू रिटर्न टू जॉय, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं अपने लाइफ में, जॉयफुलनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। हाउ टू डू इट? बाय क्रिएटिंग जस्ट वन सिंगल थॉट। और उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, माई नेचुरल स्टेट इज़ जॉय, माई नेचुरल स्टेट इज़ ब्लिस, माई नेचुरल स्टेट इज़ हैप्पीनेस। तब देखिए आप कैसे बाहर आते हैं, धीरे धीरे बाहर। ऑब्वियसली ये रातों रात एक दिन में नहीं होगा, इसे प्रैक्टिस के तरह करना पड़ेगा। डेली आपको ये मंत्रा की तरह चर्न करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, मन ही मन में या फिर अलाउड, या फिर लिख भी सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, ये सब लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। एंड राइटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल, राइटिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल। वो और डीपली आपके अंदर जाता है अगर आप लिखते हैं तो मन ही मन में बोलिए या फिर लिखिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए। तो मैंने पहले भी कहा है ये इस वीडियोस के बारे में कि एक डायरी मेंटेन कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए। एक दिन करने से नहीं होगा, ये आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तब जाके ये आपके दिमाग में बैठेगा, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में बैठेगा और सब कुछ पॉसिबल होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल माय डियर। सो अपने आप को एक चांस दें। कुछ नहीं, सिंपल सा एक थॉट ही क्रिएट करना है, एक जॉयफुल थॉट, हैप्पी थॉट, जिसका मीनिंग, जिसका इंटेंशन, जिसमें हैप्पीनेस हो, ब्लिस हो, जॉयफुलनेस हो। दैट्स वाई शुरू में कहा गया है योर नेचुरल स्टेट इज़ जॉय।
Taurus people. So to return to joy is very simple. All it takes one positive thought. एक कोई भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए जो आपको सुकून दे अंदर ही अंदर. फिर उसके बाद उसे लिखिए. उसके बाद नेक्स्ट डे फिर और जो चाहते हैं आप और एक पॉजिटिव थॉट पैदा कीजिए, क्रिएट कीजिए. वी क्रिएट आवर थॉट्स, यू नो, वी क्रिएट आवर थॉट्स. चूज़ वाइजली. कोई भी थॉट ऐवे ही आ जाए तो उसे चूज़ मत कीजिए. डोंट. नेगेटिव थॉट्स ऐसे ही डिस्कार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप उसे पकड़ के रखेंगे तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा, वही आप पे हावी होगा. तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए पर्पसली, इंटेंशनली. एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके अपना एक डायरी मेंटेन कीजिए, लिखिए. तब देखिए कैसे आपका थॉट मैनिफेस्ट होगा, रियलिटी में आएगा. सिर्फ दिमाग तक, इमेजिनेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा. ओके, मूविंग आउट टू द पॉजिटिव एफर्मेशन. व्हाट यू नीड टू डू, टॉरस पीपल. इट सेज एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. ये भी आपको लिखना पड़ेगा. ये थॉट क्रिएट कीजिए अपने मन में, तभी तो पॉसिबल होगा. एवरीथिंग वर्क्स फॉर मी. मे बी आप नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं करता है, कुछ नहीं होता है मेरे से, या फिर मेरे फेवर में. डोंट थिंक लाइक दैट, टॉरस. प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट. थिंक लाइक दैट. इफ़ यू थिंक लाइक दैट, इट विल हैपन दैट वे ओनली. जैसा हम लोग सोचते हैं, हम लोग का थॉट जैसा होता है, हम लोग का लाइफ भी वैसे ही होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्योंकि थॉट ही हम लोग का जीवन का फाउंडेशन है, बेस है, स्ट्रक्चर है. ओके, वॉट एवर एनर्जीज यू हैव इन योर लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर थॉट्स. ऑब्वियसली कर्मा तो है ही, लेकिन उसे आप सुधारना चाहे तो अपने थॉट में पॉजिटिविटी ला के, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके, पॉजिटिव थॉट बिठा के आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं. सो यू हैव टू से एंड राइट डाउन, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. बी अफर्मेटिव, बी पॉजिटिव इन योर अफर्मेशन. अफर्म कीजिए ये यूनिवर्स के पास. ओके, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी. तब देखिए वाकई में एवरीथिंग आपके लिए वर्कआउट करेगा. नेगेटिवली नहीं, सर्टनली पॉजिटिवली. एवरीथिंग विल वर्क आउट पॉजिटिवली फॉर यू. मूविंग ऑन टू द गाइडेंस पार्ट, टॉरस पीपल. एनर्जी हीलिंग. दिस कार्ड सेज एनर्जी हीलिंग. होलिस्टिक, वेलबींग, थ्राइविंग, वाइब्रेंट. एनर्जी हीलिंग हो सकता है आपके एनर्जीज़ में, जैसे यहाँ पे भी आया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी फेस चल रहा होगा. आप सही तरह से सोच नहीं पा रहे होंगे. नेगेटिव थॉट्स आ रहा है जो कि सक कर रहा है पूरा मेंटल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है. तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है. That's why maybe this card has come out, Taurus people. You need your energies to be healed. हम सबको चाहिए हीलिंग. हम लोग हीलिंग किसको करते हैं? एनर्जीज़ को करते हैं, चाहे मेंटल हो, फिज़िकल हो, वॉट एवर इट इज़. यहाँ पे करेंगे तो उसका वाइब्रेशन सारा शरीर में फैलेगा, आपके जीवन में फैलेगा इन टोटलिटी, ओवरऑल. ओके, सो यू नीड टू हील योर एनर्जी, हील योर सेल्फ. नेचर में जाइए, हीलिंग्स के बहुत सारे उपाय हैं. प्लीज़ ज़रा स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, गूगल में देखिए, नेट पे देखिए कि हील कैसे करते हैं. हाउ टू हील योर सेल्फ. अनहील्ड रह के मत रहिए. कभी खुशी नहीं पा सकते हैं या फिर सुकून नहीं पा सकते हैं अपने लाइफ में. बी हील्ड माई डियर, हील योर सेल्फ. सो यू नीड एनर्जी हीलिंग as guided by the universe. Moving on to the second part of the guidance. It says, welcome abundance into your life. Welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. हो सकता है आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस में कुछ
फाइनेंशियली आप कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, टर्मोइल्स फेस कर रहे हैं, हार्ड टाइम्स फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स, यू नो. तो मे बी फॉर सम टॉरियंस इट कुड बी फाइनेंशियल, फॉर सम टॉरियंस इट कुड बी सम अदर फील्ड्स. जैसा मैंने शुरू में कहा, टेक इट एज इट रेजोनेट्स. हर एक टॉरियन का स्टोरी, लाइफ स्टोरी एक जैसा नहीं होगा. अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज है हम लोग के लाइफ में, सेक्टर्स हैं. तो हर एक सेक्टर के लिए हर एक तरह के सिचुएशंस पैदा होते हैं. तो आप प्लीज़ उस हिसाब से ले जिस हिसाब से आपके लाइफ में ये स्टोरी या फिर ये मैसेजेस फिट करता है. ओके, सो it could be financial for some, it could be love for some, it could be family for some, it could be self for some. So welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal you. यहाँ पे भी देखिए हीलिंग की बात आई है दोनों कार्ड में. इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की, हीलिंग करने का आपके एनर्जीज़ को. मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग और द अदर, Taurus people, so you need healing. So please heal yourself. Ask help from the universe. Universe is always there for us to help us and guide us and heal us. नेचर में जाइए, जो आपको सुकून दे वैसे कुछ काम कीजिए. ऑब्वियसली सही रास्ते में रह के गलत रास्ता मत पकड़िए, उसका इफ़ेक्ट गलत ही होगा. ओके, सो टॉरियन पीपल, this was all about your reading. Hope you liked it and it helped you in some way or the other. Hope you got the guidance. Take it as it resonates with you in whatever field you need it, and do make the necessary changes in your life, whatever application is needed in your life to make it a better one, to enhance it, you know. Heal yourself well. Wish you all the very best and see you in my next reading. Till then, take care, bye-bye, see you again, and happy Diwali.